اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام آقا دو عالم خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ، آپ کی آل پاک پہ، صحابہ کرام پہ، اولیاء کرام پہ۔ درود و سلام کے بعد میرا آج کا موضوع ہے عمران خان نے ڈیل کر لیا ہے، گھٹنے ٹیک دیے ہیں اور جیل کی زندگی اچھوں کو جھکا دیتی ہے۔ تو یہ کیا چیز تھا؟ قوم یوتھڑ اب بھی نہیں مان رہی ہے لیکن وہ ڈیل کر چکا ہے۔ اس پہ تفصیل سے بتاؤں گا کیسے ہوئی ہے اور کون سے ملک جا رہا ہے، اس پہ بھی یہ بھی بتاؤں گا، اور کب رہا ہو رہا ہے یہ بھی بتاؤں گا۔ سب سے پہلے آپ لوگوں سے بس ایک اپیل ہے کہ دیکھیں، یہ میرے اکیلے کا چینل نہیں ہے، یہ ہم سب کا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ دیکھنے اور سننے والوں کا چینل ہے، اور اس میں انشاءاللہ آپ لوگوں کو اتنا سچ ہوگا تو اتنا ہی بتایا جائے گا، اس میں جھوٹ شامل کر کے اتنا نہیں کیا جائے گا، کیونکہ ویسے بھی میں 75 سال کا ہو گیا ہوں، بونس پہ چل رہا ہوں، تو جھوٹ بول کے آخرت خراب کرنے کا کیا فائدہ۔ تو کوشش کیا کریں میرے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کر دیا کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیا کریں، ولاگ پورا دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور جو تھوڑی بہت اشتہارات آتے ہیں نا 2-3 سیکنڈ 4 سیکنڈ 5 سیکنڈ سے اوپر نہیں ہوتا ہے، وہ بھی دیکھ لیا کریں، وہی انکم کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ تو اس وقت دیکھیں کس طریقے سے پاک فوج بیک وقت 4-5 محاذوں پہ لڑ رہی ہے، بیرونی دشمنوں سے بھی لڑ رہی ہے، عالمی طاقتوں سے بھی لڑ رہی ہے، اندرونی دشمنوں سے بھی لڑ رہی ہے، اور غداروں سے بھی لڑ رہی ہے، چوروں اور ڈاکوؤں سے بھی لڑ رہی ہے۔ اللہ ساتھ دے رہا ہے فوج کا، کیونکہ یہ جو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اب جو آرمی چیف آئے ہیں نا حافظ سید عاصم منیر صاحب، یہ علی اور فاطمہ کی اولاد ہے اور شاہ شمس تبریز کی نسل ہے، جس نے سورج کو ملتان میں 7 نیزے پہ بلا لیا تھا۔ یہ آپ ملتان کے کسی بھی بندے سے کوئی یوتھڑ اگر تصدیق کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، یہ اس کی نسل ہے۔ تو اگر اللہ نے ان کو اتنی پاور دی تھی کہ وہ سورج کو نیچے بلا سکتے تھے، تو اس کو بھی اللہ نے بے حساب طاقتیں دی ہیں، بے حساب صلاحیتیں دی ہیں، کیونکہ جو علی کا شعر ہو، فاطمہ کا خون ہو، فاطمہ کا دودھ پیا ہو جس نے، فاطمہ کی اولاد ہو، وہ کب بکنے والا اور جھکنے والا ہے؟ یہ نہ بکنے والا ہے نہ جھکنے والا ہے، یہ انشاءاللہ ایک ایک غدار کو جہنم واصل کرے گا، ایک ایک یوتھڑ کو اس کے انجام تک پہنچائے گا، اور انشاءاللہ اب ملک بھی ترقی کرنا شروع ہو گیا ہے۔ الحمدللہ پاکستانیوں کو بہت بہت مبارک ہو کہ کل پاکستان کے دیکھیں پوری زندگی پورا جو ہے نا سوری کل نہیں پرسوں جمعے والے دن کی بات کر رہا ہوں، کل تو ہفتہ تھا، آج اتوار ہے، تو جمعے والے دن پوری دنیا کے سٹاک ایکسچینج نیچے بیٹھ گئے ہیں، بالکل ڈیڈ ہو گئے ہیں، یہ بش کی کارنامے کی وجہ سے۔ میں نے کیا کہا تھا، جیسے عمران نے ملک کو تباہ کیا تھا ایسے ہی بش بھی امریکہ کو تباہ کرے گا، وہ دیکھ لیں اسی مشن پہ لگ گیا ہے نا۔ یہ سفید بالوں کی اللہ عزت رکھ لیتا ہے، جو زبان سے نکلتا ہے نا پوری تصدیق کے بعد نکلتا ہے، اللہ اس کو پورا کر دیتا ہے، یہ اس کی کرم نوازی ہے۔ تو جھوٹ کبھی بولا نہیں ہے، جانے میں کوئی نکل جائے تو اللہ اس کی معافی دے۔ تو پاکستان کی سٹاک مارکیٹ نے
1,20,000 का फिगर क्रॉस किया है अल्हम्दुलिल्लाह, जबकि पूरी दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज नीचे जा रही हैं, रिवर्स हो रही हैं, तेजी से नुकसानात हो रहे हैं। हमारी स्टॉक एक्सचेंज अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से ऊपर जा रही है। ये अल्लाह की करम नवाजी है, इंसान कुछ भी नहीं है। अच्छा, मैं आप लोगों को एक और बात बताऊं ना, कि मिसाल देता हूँ चिड़िया की, मैना की। तो कोई भी परिंदा ले लेना, वो अपने जानवरों को पालता है, पोसता है, उनके इतना इतना टुकड़ा अपना पेट काट के ना, तो उनको पेट भरता है उनका, पानी भी पिलाता है, खाना भी देता है, उसके अंडों के ऊपर भी बैठते हैं, उनको सेकते भी हैं। और उसके बाद जब बच्चे निकल जाते हैं, उनके पर निकल आते हैं, वो घोंसले से उड़ जाते हैं, उसके बाद उनसे कोई उम्मीद नहीं रखता है। इसलिए आप लोग भी औलाद से उम्मीदें ना लगाया करें। जब ये उम्मीदें टूटती हैं ना, तो बहुत दुख होता है। फिर उम्मीद लगानी है अगर, तो उस वादा उल्लाह शरीक से लगाओ कि जो देख के देता है ना, दे के ये भी नहीं कहता है कि वापस कब करोगे, वापसी का तकाजा भी नहीं करता है। तो कोशिश किया करें, पांचों वक्त नमाज पढ़ा करें। जो अल्लाह के आगे झुकता है ना, फिर अल्लाह उसको किसी दुनिया के बंदे के आगे नहीं झुकने देता है। अल्लाह हम सबको पांचों वक्त का पक्का नमाजी बनाए, कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। चाहे एक आयत भी पढ़ी जाए ना डेली, कुरान पाक जिस घर में खुलता है ना, उस घर में अल्लाह की रहमतें नाज़िल होती हैं। तो कोशिश किया करें, कुरान को खोला करें। तो अब आप आ जाएं जनाब खान साहब के ऊपर। ये चंद दिन पहले, ईद से पहले, ISI के सरबराह ने जेल से उनसे मुलाकात की। उसकी ख्वाहिश पे, इमरान खान की ख्वाहिश पे, रिक्वेस्ट पे, मिन्नत तरले पे, और उसने वहां पे उसके पांव पकड़ लिए, लिख के दे दिया, रिटर्न दे दिया। अब आर्मी के पास उसकी रिटर्न माफीनामा मौजूद है। कौम यूथर तो कह रही है ना, नहीं जी वो डट के खड़ा है, वो लद कर चुका है, उसकी लेद निकल चुकी है, वो बिल्कुल घुटनों के बल आ गया है। उसने ना सिर्फ माफी मांगी है, बल्कि रिटर्न लिख के दी है, माफीनामा लिख के दिया है। तो उसके बाद उसने रिक्वेस्ट की, मिन्नत की, पांव पकड़े कि भाई खुदा के लिए मुझे अमेरिका या इंग्लैंड भिजवा दो, इन दोनों ममालक में से, या कनाडा में से, 3 ममालक में से किसी एक मुल्क में भेज दो। उन्होंने कहा नहीं, वहां जाके फिर तू मुल्क के खिलाफ काम करेगा। अगर तूने जाना है तो सऊदीया जा सकता है, जद्दा जा सकता है। वहां की कानून और वहां की गवर्नमेंट दड़ा मरच वाला डंडा नीचे से देती है ना, तो मुंह से बाहर निकाल देती है वहां पे, अगर कानून की खिलाफ वर्जी की जाए तो ये वहां जाने पे भी तैयार हो गया। पहले कोशिश करता रहा, मित्ते तरले करता रहा कि वहां ना भेजा जाए, बाद में फिर कहता है चलो ठीक है जी वही भेज दें, लेकिन यहाँ पे इससे खुदारा मुझे जेल से निकालो किस तरीके से। और वहां पे उसको ना कोकीन मिलेगी, ना चर्च मिलेगा, ना लड़कियां मिलेंगी। वहां पे उसको सिर्फ और सिर्फ ये फिरने टुरने की पाबंदी नहीं होगी, घर के अंदर ही, घर से बाहर भी निकलने की इजाजत नहीं होगी, बाजार में जाने की इजाजत नहीं होगी। सब पाबंदियां उसने कबूल की हैं। हर चीज कबूल करने के बाद फिर एग्रीमेंट हुआ है। ये बहुत जल्द जो है ना निकल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे रह के इसने इंतशार ही फैलाना था। जब भी मुल्क थोड़ा सा मुस्तहकम होता था तो ये इंतशारी टोला इंतशार फैलाने आ जाता था। इनका काम ही है मुल्क को तबाह करना, मुल्क को नुकसान देना। अब ये नौजवान नस्ल को मैं क्या कहूँ, अल्लाह इनको हदायत दे। अगर हदायत के काबिल नहीं है तो फिर अल्लाह इनको नेस्त व नाबूद करे। ये जो गंदी गलीज नस्ल इसने तैयार किया ना, ये नस्ल, इसको मुल्क से कोई गर्ज नहीं है। अब देखें इनके मुंह पे जूता मार रहा है ना उसने, अब कौम यूथड़ के मुंह पे जूता मार के उसने एग्रीमेंट कर लिया है। वो बाहर जा रहा है, जद्दा जा रहा है। नवाज शरीफ को कहते थे ना कि वो जद्दा भाग गया है। अब देखे अल्लाह की पकड़ में जब आदमी आता है ना, गुरूर और तकब्बर अल्लाह को नहीं पसंद है।
तो देखें किस तरीके से अब ये खुद भी जद्दा भाग रहे हैं। ये होता है हर अमल का रद्द अमल, ये इसके हर बुरे अमल का रद्द अमल है। तो अब इसको जमानत दी जाएगी, केसों की जमानतें दी जाएंगी, केस बरकरार रहेंगे। 9 मई का केस भी बरकरार रहेगा, सिर्फ उसमें जमानतें इसको मिल जाएंगी। जमानतें मिलने के बाद फिर इसको बाहर जाने के, इसका नाम ECL से निकाल दिया जाएगा, इसको बाहर जाने की इजाज़त मिल जाएगी। और कौन सी जगह? स्पेशल जहाज़ आएगा जद्दा से, शाही खानदान का, वो इसको लेके जाएगा। किसी और जहाज में इसको जाने की इजाज़त नहीं होगी। और बिल्कुल किसी किस्म की सियासत का दूर दूर तक इसका कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। इसने लिख के दे दिया कि मैं हमेशा के लिए सियासत छोड़ रहा हूँ। उसके बाद PTI का से भी इसने तौबा कर लिया कि PTI से भी मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं होगा। और अपना जानशीन किसको मुकर्रर किया है? अलीमा को, क्योंकि तो जा रहा है। अलीमा को जानशीन मुकर्रर किया है और बाकी किसी को भी अलाउ नहीं होगा, कोई भी बाकी नहीं जा सकेगा, किसी का नाम भी ECL से नहीं निकलेगा। बाकी 9 मई के जितने भी किरदार हैं ना, सबको सजा मिलेगी। इसको इसको भी सजा मिलनी थी, लेकिन बस कुछ आलमी ताकतों का प्रेशर बहुत ज्यादा है। IMF तक जो है ना, IMF भी आलमी ताकतों की लोंडी है ना, उन्होंने भी शर्त रख ली हुई है कि इसको पहले रिहा करो, चाहे किसी भी मुल्क में भेज दो, लेकिन जेल से निकालो इसको। तो अब देख लें, इन आलमी ताकतों का टाउट ही था ना जुल्फकार अली भुट्टो को क्यों नहीं निकलवाया था, नवाज शरीफ को क्यों नहीं निकलवाया था, शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज, कितने सियासतदान, आसफ जरदारी, बेनज़ीर, जुल्फकार अली भुट्टो, कितने सियासतदान, हर सियासतदान जेलों में गया है। किसी के लिए भी आवाज़ किसी ने कि ना किसी इसराइल ने उठाई है, ना किसी यहूदी ने उठाई है, ना अमेरिका ने उठाई है, ना ये जो, हाँ, एक आफरीन है। मैं दोनों हाथों से सलूट पेश करता हूँ हाफिज सैयद आसिम मुनीर को, कि उसने जो ये बहुत बड़ा कारनामा है, चुन चुन के अफगानियों को निकाला जा रहा है। और जो बंदा इनको पनाह देगा, जो इनको अपने पास रखेगा, अपना घर किराए पे देगा, या इनके पड़ोस में रहता होगा, वो गवर्नमेंट को या पुलिस को अतला नहीं करेगा कि यहाँ पे अफगानी रहते हैं, उसको भी सजा मिलेगी। तो इसलिए आप लोगों के अड़ोस पड़ोस में जो लोग रहते हैं ना, उनकी फौरन पुलिस को 15 पे अतला करें। दुख मुझे भी है, बीच में बहुत अच्छे लोग भी थे, बहुत अच्छे, लेकिन अक्सरियत बुरे लोगों की थी। अच्छे लोग 20% थे, 80% बुरे लोग थे, जो यहाँ पे डाके मारते थे, चोरियां करते थे, जाली करेंसी बनाते थे, स्मगलिंग करते थे, बम्बों के धमाके करते थे, दहशत गर्दी में बराह रास्त मुलव्वस होते थे। तो फिर क्या करते हम? हमने देखें, काफ़ी मेहमान नवाजी कर ली है ना, बस इतना ही काफ़ी होता है। तो अब खान साहब को जमानत मिलेगी, उसके बाद ये जहाज में बैठेंगे और सीधा जद्दा जाके स्टे करेंगे। जद्दा जाके तो इनका स्टॉप होगा, उससे पहले नहीं होगा। और वहां पे भी इन पे मुकम्मल पाबंदी होगी, सियासी विलाग नहीं कर सकेंगे, सियासी कोई वो नहीं कर सकेंगे, ट्विटर या कोई भी मीडिया टॉक नहीं कर सकेंगे। जो इनका अकाउंट है ना, वो भी ब्लॉक कर दिया जाएगा, वो भी ख़त्म कर दिया जाएगा। और उसके बाद फिर इनको वहाँ कितना अरसा सज़ा मिलती है, कितना अरसा जलावतनी गुजारते हैं, ये अल्लाह ही बेहतर जानता है, बंदा नहीं। तो उसमें कोई नहीं लिखा है, एग्रीमेंट जो हुआ है ना, उसमें वापसी की तारीख कोई नहीं है कि कब वापसी होगी। मैं तो कहता हूँ उधर ही मार खप जाए, जान छूटे, क्योंकि इसने जब भी आना है, शैतानों का तो काम ही यही होता है, शर फैलाना। ये हकीम सईद, डॉक्टर इसरार और ये जितने भी चोटी के लीडर थे ना, उन्होंने झूठ नहीं बोला था, ये यहूदियों का एजेंट है। तो
उसके बाद देखें अब किस तरीके से इसने ये एग्रीमेंट कर लिया है और जा रहा है, और सब कुछ जो है ना यहीं पे छोड़ के जा रहा है। इसीलिए कहते हैं ना, अल्लाह से डरते रहना चाहिए और मुल्क का वफादार रहना चाहिए। सियासी लोगों का कोई दीन ईमान नहीं होता, ये कभी उधर हो जाते हैं, कभी इधर हो जाते हैं। और गंडापुर का भी मैं उस पर पूरा विलाप करूंगा, उसकी हुकूमत भी बस एंड होने वाली है। ये भी इमरान खान ने लिख के दे दिया कि बस ठीक है जी, वहाँ पे जो अपनी गवर्नमेंट की मर्जी है कौन सी हुकूमत लाती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।